Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are safe and healthy at home. And dear students, doing study regularly as well. So, my dear students, we have studying our chapter number 4, and the chapter name is Consumers Equilibrium Indifference Curve Analysis. Almost all the points from this chapter we have completed in our previous videos. Today we will complete this chapter along with two important questions. So let's proceed for the topic. But first of all, as usual, we will recap all the points from this chapter which we have completed in previous videos. So first is cardinal and ordinal concepts of utility. My dear students, some students are doing work but they are just writing a very lengthy concept from the book. It means they are not watching or listening videos carefully. You have to only summarize the topics beta. Don't go in the depth that write all the content from the book. You have to write only those points which we discussed for the purpose of study. First, cardinal and ordinal concept of utility. Cardinal means when utility measures in terms of numbers like 1, 2, 3, and ordinal means when utility measures in ranks. Okay. Then after we have started indifference set, indifference curve, so a tabular presentation of combination of two goods which offers the same level of satisfaction to the consumer. It means टेबल में हम दो गुड्स के कंजम्पशन के कॉम्बिनेशन को शो कर रहे हैं जो कि कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है, दैट इज इंडिफरेंस सेट. और व्हेन वी शो these combination on diagrammatic form, so it is known as indifference curve. Okay, it means with the help of this schedule we can plot the points on graph, or this graphical presentation is known as indifference curve. Then after we started monotonic preference. Monotonic preference simply means more consumption gives more satisfaction. हमेशा ज़्यादा consumption हमें ज़्यादा satisfaction देता है, but अ साउंड माइंडेड पर्सन नेवर बी ओवर सप्लाइड. लेकिन फिर हम कभी भी एक लिमिट से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेंगे. एंड देन आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड ऑल द properties of PPC. PPC has mainly 5 properties. First, PPC slopes downward. Okay, then PPC is convex to the origin because of diminishing MRS. Then after we have completed that higher IC shows higher level of satisfaction. Okay, then after IC do not intersect each other, and the last one is ICs do not touch x-axis and y-axis. Okay, dear students, so I hope you understand all the points. Then after yesterday we have started consumer's budget. Consumer's budget means that how much part of his income कंज्यूमर इज़ रेडी टू स्पेंड ऑन द कॉमोडिटी. अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूमर कॉमोडिटी पर खर्च करने के लिए विलिंग है और रेडी है. ओके, सो बोथ आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. विलिंग एंड रेडीनेस इज मस्ट एसेंशियल फॉर द कंज्यूमर बजट. yes, so when we show these combinations, two goods combination that consumer is ready to buy on the table, that is in budget set. Or when we show all the budget set on a graph, that is budget line or price line. Price line and budget line both are same. Okay, budget line means price line. Then after we have completed that what are the attainable and non attainable combinations on budget line. So dear students, attainable and non attainable means एनी कॉम्बिनेशन विच इज़ लाइज ऑन द बजट लाइन, जो बजट लाइन के ऊपर है एंड इनसाइड द बजट लाइन, और बजट लाइन के अंदर है. ऑल द पॉइंट्स आर नोन एज अटेनेबल और फिजिबल पॉइंट्स. और एनी पॉइंट आउटसाइड द बजट लाइन, जो बजट लाइन से बाहर है, आउट ऑफ आर पॉकेट, हमारी पॉकेट से बाहर है, दैट इज नॉन फिजिबल और नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन. ओके डियर स्टूडेंट्स, सो देन आफ्टर वी हैव कंप्लीटेड दैट कैन बजट लाइन शिफ्ट. First of all, what is the slope of budget line? Simply you can see in all the diagrams that budget line is downward sloping, because if we buy more of one commodity we have to sacrifice the other. अगर हम एक को ज़्यादा खरीदेंगे तो दूसरे को हमें कम करना पड़ेगा. ओके, सो बजट स्लोप ऑफ बजट लाइन इज डाउनवर्ड. बजट लाइन कैन शिफ्ट. क्या बजट लाइन शिफ्ट हो सकती है? यस, बजट लाइन कैन शिफ्ट. सपोज दिस इज द गिवन बजट लाइन, दिस इज द गिवन बजट लाइन. इफ इनकम इंक्रीजेज, अगर इनकम इंक्रीज होगी तो वी कैन बाय मोर गुड्स, मोर कॉमोडिटीज़, हम ज़्यादा गुड्स और कॉमोडिटीज परचेज कर सकते हैं. इट मीन्स बजट लाइन विल शिफ्ट फॉरवर्ड. और इफ़ आर इनकम इज़ डिक्रीजिंग, अगर ₹60 से जब 20 हो रही है, 120 हो रही है, तो बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगी. बट अगर 60 से 30 रुपीज़ हो जाती है इनकम, तो बजट लाइन बेटा बैकवर्ड शिफ्ट करेगी. इट विल शिफ्ट बैकवर्ड.
Okay, so very simple. Budget line can shift either forward or backward. It is depends on the income of consumer. So today is a very important question, consumers equilibrium using indifference curve. सो माय डियर स्टूडेंट, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पहले भी पढ़ा है इन द प्रीवियस चैप्टर यूटिलिटी एनालिसिस, बट देयर वी हैव स्टडीज टू केस. अगर आपको लर्न है तो हमने दो केस पढ़े हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के. फर्स्ट इज वन कॉमोडिटी केस एंड सेकेंड इज टू कॉमोडिटी केस. One commodity and two commodity case we have completed, but now here we are studying consumers equilibrium in indifference curve analysis. So the meaning of consumers equilibrium is same. Consumers equilibrium means consumer equilibrium refers to the optimum choice of consumer. It means it is a reaching of maximum satisfaction, or it is a situation of maximum satisfaction that consumer is ready to gain from the commodity आफ्टर स्पेंडिंग हिज इनकम. अपनी इनकम खर्च करने के बाद कंज्यूमर एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना चाह रहा है. उस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को क्या बोलते हैं बेटा? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. इन वेरी ब्रीफ, बहुत शॉर्ट में आप लर्न कर सकते हो. कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द कमोडिटी. ओके, सो बेटा देर आर द टू कंडीशन. टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई. टू कंडीशन सेटिस्फाई होना कंपल्सरी है. फर्स्ट MRS. MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन equals to px upon py. Marginal rate of substitution. First is MRS equals to px upon py. Second, IC is convex at the point where MRS equals to px upon py. It means there are the two things. First is MRS equals to px upon py. Second, IC is convex to the origin. Only 2 points we have to study. Yes, dear student. So MRS मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, स्लोप ऑफ IC. और स्लोप ऑफ IC कैसी होती है बेटा? स्लोप ऑफ IC ऑलवेज बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. ओके. सेकेंड PX अपॉन PY, दैट इज स्लोप ऑफ प्राइस लाइन. प्राइस लाइन मीन्स बजट लाइन. अब ये हमारी बजट लाइन. क्लियर? सो हमें दो चीज़ें, ये दोनों जब भी इक्वल होंगी इन दिस डायग्राम, दीज आर नॉट इक्वल, ये कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं. अगर डायग्राम कुछ इस तरीके से बने, लाइक दिस इज द बजट लाइन एंड दिस इज द IC टेंजेंट, अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो इट मीन्स ये जो टेंजेंट पॉइंट होगा ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा. तो इट मीन्स प्राइस लाइन शुड बी इक्वल्स टू IC. ओके, दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होना चाहिए. अब देखते हैं. तो फर्स्ट कंडीशन IC, स्लोप ऑफ IC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ प्राइस लाइन, और IC को आप शॉर्ट में बोल सकते हो MRS इक्वल्स टू PX अपॉन PY. सेकेंड कंडीशन IC इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. और जब ये दोनों इक्वल होंगे उस टाइम पर IC क्या होना चाहिए आपका? कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होना चाहिए. ओके, सो MRS इक्वल्स टू PX अपॉन PY, ये आप अच्छे से जानते हो. MRS मीन्स द अमाउंट ऑफ गुड वाई दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप फॉर द एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ गुड X. इसका सिंपल मीनिंग ये है कि अगर हम X क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो हमें Y का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. तो किस अमाउंट का, कितने अमाउंट का हम सेक्रीफाइस करें, दैट इज MRS. ओके, सपोज कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 1 एप्पल एंड 2 oranges, first combination. Okay, now okay, suppose five oranges, you can easily understand. Now next he is consuming 2 apple. तो now अब उसने क्या किया बेटा? सेक्रीफाइस किया है. अब कॉम्बिनेशन क्या शो कर रहा है? 1 एप्पल इक्वल्स टू 5 ऑरेंज एंड 2 एप्पल इक्वल्स टू 3 ऑरेंजेस. तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन ये है, और सेकंड कॉम्बिनेशन में जैसे ही कंजम्पशन इंक्रीज हुआ एप्पल का, उसे 2 यूनिट्स का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है. किससे? ऑरेंज से. तो रेशियो कितना हो गया? 1:2. ओके, तो इट मीन्स किस अमाउंट में वो सेक्रीफाइस कर रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ MRS. और PX अपॉन PY आपको पता है बजट लाइन, और IC शुड बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. Now proceed for the next point, and the next point is diagrammatic presentation. You can easily understand here. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीनिंग आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखनी है इसके लिए. सेकंड, आपको उसकी 2 कंडीशन लिखनी है. व्हाट आर द 2 कंडीशन? अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का सिंपल तरीका है बेटा, एंड व्हाट इज द सिंपल वे? फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. एंड मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स दैट कंज्यूमर इज
रेडी टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन, सबसे पहले आपको उसकी मीनिंग लिखनी है, मीनिंग कंप्लीट हो गई, देन आफ्टर आपको कंडीशंस लिखनी है, टू कंडीशंस, एम आर एस इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई एंड आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। फिर आपको उन्हें एक्सप्लेन कर देना कि एम आर एस की मीनिंग क्या है और आई सी वाई आई सी इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग एम आर एस। सिंपल लाइन में आपको इसे एक्सप्लेन कर देना है। देन आफ्टर यू हैव टू शो इट इन डायग्राम, फिर जो आपने कॉम्बिनेशन अभी लिखे हैं उनको आपको डायग्राम में प्रेजेंट करना है। ऑन द एक्स एक्सिस यू हैव टू शो गुड एक्स, ऑन द वाई एक्सिस यू हैव टू शो गुड वाई। ओके, देन आर बजट लाइन कि कंज्यूमर इतना रेडी है कंज्यूम करने के लिए। देन प्रिपेयर आई सी और इट शुड बी एट द सेंटर टेंजेंट, ये इस तरीके से टेंजेंट होना चाहिए। दिस पॉइंट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इट मीन्स IC मीन्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, बट वो हमारे इनकम के अंदर भी होना चाहिए, हमारे बजट में भी होना चाहिए। सो दिस पॉइंट डी पॉइंट इज इन आर इनकम reachable point. So consumer equilibrium is here. Okay, dear students. So this is a 6-mark question. So what we have completed today, we have completed a 6-mark question, consumers equilibrium in indifference curve. So how we will attempt that question? अगर ये question आता है तो आप कैसे attempt करेंगे? First of all write the meaning, then after 2 conditions, and now explain 2 conditions, then after show it in diagram. Okay, dear students. And the last point is, how will the consumer move along IC in a situation when MRS XY greater than PX upon PY? Very simple. अभी आपने पढ़ा कि जब MRS इक्वल होगा, सपोज ये आपके पास डायग्राम है, दिस इज योर बजट लाइन एंड टेंजेंट पॉइंट हमने ये यहाँ बना दिया, दैट इज IC, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है। लेकिन व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, सपोज ए पॉइंट, ये तो हमारे बजट में ही नहीं है। सो व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? This point, suppose B point is in our equilibrium point, it is in our pocket. And what about the C point? Suppose here is the C point. Okay, so what a consumer will adopt? Ab MRS means IC is greater than PX upon PY. So in this condition, a simple decision a consumer will take. The consumer should move downward to the right along the IC. Convexity of IC ensures that consumer move downward to the right along IC's. MRS tends to fall, implying that consumer should start consuming more of X in place of Y. जब भी MRS ग्रेटर होगा तो हमें MRS को क्या करना है? कम करना है। तो कंज्यूमर के पास सिर्फ आपको एक ही लाइन में आंसर लिखना है, दैट कंजम्पशन ऑफ X कॉमोडिटी शुड बी इंक्रीज। एक्स का कंजम्पशन बढ़ते ही उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन कम होगी, वाई की सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, MRS डिक्रीज होगा और वो PX अपॉन PY के इक्वल हो जाएगा। बिकॉज वी कांट चेंज द प्राइस बट वी कैन चेंज द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम सेटिस्फैक्शन का लेवल तो चेंज कर सकते हैं, प्राइस चेंज नहीं कर सकते। तो जब भी MRS ग्रेटर होगा हमें X का कंजम्पशन बढ़ाना है, और जब भी MRS बेटा आपका लेस होगा PX अपॉन PY से, तो उस केस में हमें MRS बढ़ाने की ज़रूरत है। देन उस दैट केस कंज्यूमर क्या करेगा? ही विल स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर ऑफ वाई का कंजम्पशन बढ़ाना है X की जगह। ओके, हेयर द कंजम्पशन ऑफ X विल इंक्रीज इफ MRS विल इंक्रीज। अगर MRS ग्रेटर है, इन दैट केस फर्स्ट केस MRS इज ग्रेटर, हमें MRS को कम करना है बिकॉज वी वॉन्ट दैट MRS शुड बी इक्वल्स टू PX अपॉन PY। फर्स्ट कंडीशन इज दिस। सो इस केस में X कंजम्पशन शुड बी इंक्रीज, Y का कंजम्पशन कम करना है, और आफ्टर सम पॉइंट द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। ओके, बट सेकेंड केस व्हाट हैपन व्हेन MRS XY इज लेस देन। अब हमें MRS को अगर इसके इक्वल करना है तो MRS शुड बी इंक्रीज, और MRS कब इंक्रीज होगा? कंजम्पशन ऑफ Y इंक्रीज। इस केस में Y का कंजम्पशन बढ़ाना है और X का कंजम्पशन आपको कम कर देना है, एंड आफ्टर सम टाइम बोथ विल बी इक्वल। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर. We have completed very important topic today. I hope you understand all the points. So dear students, complete your work on time and send pics of your work on the regular basis so that I can maintain the record that how many students are doing work regularly. Some students are doing very grateful job. So keep it up beta, stay blessed.